everyone, welcome to my channel. I am so glad I'm saying this again. So my name is Tanisha. A little disclaimer that in no way I am saying that this is the journey on how to get collaborations for you. I am just going to talk about how it worked out for me. Might be wrong or it might be right. I am not claiming that it is right or this is the way that will work for you. Everybody has their own journeys, so it might not work for you, but I am only going to say what I keep that in mind. But let's just get started on this video and get you collaborations. Let's talk about a big brand. Say it's OnePlus. Okay, so since I'm the brand ambassador, so I can talk about OnePlus. So OnePlus एक ब्रांड है, अब उसको चाहिए a group of people or people from the college because they are targeting the youth, they want the Gen Z people. So सारी ब्रांड्स क्या करती है, उनका टारगेट जो ऑडियंस है वहाँ से वो कॉलेज से लोगों को अप्रोच करेगी. तो वो डायरेक्ट अप्रोच नहीं करेगी, they will hire an agency to do that, which is the influencer marketing agency. अब इस एजेंसी में क्या होता है कि एक आपका जो बंदा होता है हु इज द पीआर या फिर हमारा जो पीओसी होता है बिटवीन द इन्फ्लुएंसर और द कैंपस एम्बेसडर एंड द ब्रांड, वो बीच का लिंक होता है. कैंपेन था बॉम्बे शेविंग कंपनी के साथ. उनका जो पीओसी था, अ गर्ल हु वाज मैनेजिंग ऑल दीज इन्फ्लुएंसर्स. She wanted people from different colleges and her brother in the design department. So she told him that she wanted people for this campaign. So her brother up to his friends. तो है ऐसा. So the design department people sent me this form. Or maybe they thought that I will be interested to do this or not. मुझे उसके बारे में पता भी नहीं था कि वो है क्या. मैंने बस ऐसे ही भर दिया. ठीक है. कट टू आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द पीओसी कि पूरा आपको एक्सप्लेन करें कि यू हैव टू डू दिस, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि आपको मिल गया. उन्होंने बोला कि आई एम सेंडिंग योर प्रोफाइल एंड इफ इट गेट्स सिलेक्टेड एंड इट गेट्स अप्रूव्ड बाय द ब्रांड, सो यू आर ऑन बोर्ड विद अस. So I told them okay. So she told me about there's a stipend as well and there's this and that. So पहले इंस्टेंस में मुझे तो लगा ही नहीं यार कि ये सच भी होता है ऐसा. इनफैक्ट जब तक मैं उनके इवेंट पे नहीं गई तब तक मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि कुछ ऐसा भी होता है, क्योंकि मैं तो कुछ कर भी नहीं रही थी उस टाइम पे, रील भी नहीं बना रही थी. तो मेरे को थोड़ा वो लगा कि यार ऐसा क्या होता है, ये तो इन्फ्लुएंसर्स के पास आना चाहिए ना. आई वॉजंट एन इन्फ्लुएंसर. और ये बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ इन्फ्लुएंसर एंड अ कैंपस एम्बेसडर. सो कैंपस एम्बेसडर कैन कम टू यू इवन इफ यू आर नॉट एन इन्फ्लुएंसर, but you are still posting out content there because you have your college audience, right? And that's what the brands are targeting towards. Okay, so my profile got selected and I got on board. So there was this first meet and I actually find out that someone from my college was also a part of this campaign. So both of us went together, absolutely blank minded, and we were just talking to each other ki, is this real, is this for real, are we getting this? But we actually got like a PR kit from there और हम तो उसी में खुश हो गए. समझ नहीं आता, बट जब मैंने वहाँ पे लोग देखे लाइक ब्यूटीफुल यंग गर्ल्स ऑल अराउंड अस, तो कुछ लोगों ने टू बी ऑनेस्ट कुछ लोगों ने बात नहीं की, उनका एटीट्यूड अलग था. जब हम जाने लगे तब हमें एक्चुअली बहुत अच्छे दोस्त मिले मुझे. इनफैक्ट ऐसे दोस्त जो अभी भी मेरे फ्रेंड्स हैं और आई थिंक वो मुझे पिछले साल के बेस्ट फ्रेंड्स मिले अभी तक. तो उन लोगों से मैं मिली. तो जब हम लोग अपना इंस्टाग्राम शेयर कर रहे थे, आई थॉट कि ओ माय गॉड ये मेरे फॉलोअर देखेंगे ना सब लोग चौंक जाएंगे. बट इनको नहीं पता है मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज, सो इट्स नॉर्मल टू हैव 1K फॉलोअर्स फॉर अ गर्ल. बट इनके तो होंगे नहीं क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं कि सारी लड़कियाँ DU की थी. तो मेरे को लगा कि 1K. सो मैंने उनको अपना इंस्टाग्राम शेयर किया. I looked at their Instagram, they had like 16K, 50K, around 100K followers, and I was like, and this was when we were about to leave the room, and I was like, I was with these influencers the whole time. Oh my god, these people are, you know, on their way to become celebrities, and I'm like, why am I counted at the same level with these people? कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता. तो ऐसा मुझे लगा उस टाइम पे. बट फिर उसके बाद DU की सारी लड़कियां आई थिंक ये काम कर रही हैं एंड दिस इज द बेस्ट थिंग एवर, क्योंकि आप अपने लिए कुछ कर रही हो, गेटिंग PRs, और पता नहीं लोग इतना क्यों आपको क्रिटिसाइज करते हैं जब आप कुछ करते हो, क्योंकि लोग पता नहीं जलते हैं या क्या है, पता नहीं क्या है उनके दिमाग में. बट आप जो कर रहे हो ना आप करते रहो. बट जितना भी मिल रहा है एज अ स्टूडेंट आप उतना ही कर सकते हो, और अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इतना भी बहुत ही ज़्यादा है मैनेज करना, बहुत डिफिकल्ट है. तो आप जो कर रहे हो वो करते रहो. तो ऐसे मुझे मेरा पहला कैंपेन मिला.
ये वाला कैंपेन मेरा था एक एजेंसी विच इज कॉल्ड यूथबीट. So if you don't already know, follow this agency called Youthbeat, and there are a lot more. There's Youth Marketer as well. I will leave the Instagram agencies who work with big brands और यही influencer marketing करते हैं. Usually ये वाली agencies आपको campus ambassadors वगैरह के लिए ही approach करती हैं और इनके forms निकलते हैं. So as I said, for Bombay there was a form which I filled और आपका प्रोफाइल सेलेक्ट होने के बाद they usually get on a call और there are interviews as well. For OnePlus there were several interviews. There were Numi Asia. So जब आपकी best thing जो होती है, I think ये मेरा disadvantage है that I suck at socializing. If there is anything more I hate than winters, it's socializing. But ये बहुत बड़ा flaw है because socializing से और contact से आपको वो चीज़ें भी मिल सकती है जो शायद आपकी क्वालिटी से भी नहीं मिलती मोस्ट ऑफ द टाइम. ठीक है, कितने सारे लोग हैं यार, कितने सारे लोग आपसे अच्छा कर रहे हैं, बट सम टाइम्स बिकॉज ऑफ सोशलाइजिंग और बिकॉज ऑफ योर कॉन्टेंट्स और मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू गेट अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट्स यू मेड, राइट. तो मेरी कोई सोशलाइजिंग नहीं है, बट जब मैं ये इवेंट पे गई थी तो आई मेट अ लॉट ऑफ गर्ल्स. सो ऑल दीज गर्ल्स वर ऑलरेडी डूइंग लाइक दीज कैंपेन्स एंड स्टफ. सो दिस वॉज द बेस्ट पार्ट कि आप कुछ ग्रुप्स में ऐड हो जाते हो विच आर लाइक इन्फ्लुएंसर ये, ठीक है. तो आपको वहाँ से कैंपेन आने स्टार्ट हो जाता है. तो देयर वाज दिस गर्ल, शी वाज वर्किंग विद न्यूमी एट दैट टाइम and she asked me like, would you like to be a part, and I was like yes obviously. So she sent me a form again. For Newme there is a form already on their page. If you want to work with them, you can work with them. Just fill out that form. If they like your profile, they will select you. So I filled that form and I got selected. So this was my second campaign and I was on cloud 9. Told me that keep posting because my page had nothing. So I think this is the key to get in campaigns. Whatever you are doing, whether it's dancing, it's singing, it's whatever in the world you're making, even if you're making transitions or lip syncs or anything at all, even if it's cringe, just continue doing that. Because when you're active on your page and you have a certain number of posts, these brands will approach you. And when you're doing all these kind of stuff, your content kinds of fill into a category. There are category like fashion, there are category like dance, there's a category like lifestyle, there's a category like beauty and everything. तो ये आपके इसमें फॉल कर गया है तो आपको ब्रांड उस हिसाब से अप्रोच कर लेगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेकअप ब्रांड है, ठीक है, अब आपके उस पर आप कॉन्टिन्यूसली पोस्ट कर रहे हो, मे बी आपकी इतनी रीच ना आ रही हो, नॉर्मल रीच हो, ठीक है, पर आप पोस्ट कर रहे हो. ठीक है, ज़्यादातर ब्रांड्स क्या करती है, वो आपके फॉलोअर, आई नो फॉलोअर देखती है वगैरह वगैरह, फॉलोअर देखती है, रीच देखती है, बट अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है ना तो आपकी रीच नहीं भी आ रही हो ना, दे डोंट केयर, आपको मिल जाएगा कैंपेन. दिस आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ PR यू गेट. ठीक है, easily if your content is really nice. Listen to people at all. ठीक है, don't listen to what they say. और I think जो आपके genuinely friends है और जो आपके genuinely supporters है, they will support you, they will comment nice things about you only. ठीक है, और I think वही at the end of the day they are the people who matter to you. अगर लावी is a bags brand, उनका भी PR के थ्रू ही था. तो आई टेल यू अबाउट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैंपेन. वन इज लाइक अ बार्टर कैंपेन एंड वन इज लाइक अ पेड कैंपेन. बार्टर कैंपेन में क्या होता है, यू गेट दिस PRs, यू गेट दिस किट्स, लाइक बार्टर हो रहा है आपका. यू गिव देम अ रील, यू गिव देम अ स्टोरी, दीज आर योर डिलीवरेबल्स एंड यू गेट समथिंग लाइक अ प्रोडक्ट, लाइक आप पैसे नहीं कमा रहे हो उसमें. जैसे कि लावी का था तो आई गॉट दैट बैग वॉज फॉर अराउंड 3000. तो वो ऐसे आपको बोलेंगे कि आपको बार्टर अमाउंट इतना मिलेगा इस ब्रांड से, यू हैव टू मेक अ रील. और ये कितने सारे स्किन केयर के ब्रांड आते हैं और आई थिंक नो हिट टू एनीबडी हु इज डूइंग इट. आई थिंक दीज आर ग्रेट, बट मैं ना स्किन केयर में इतना हूँ नहीं. डॉट एंड की इज डूइंग दिस कैंपेन ऑलमोस्ट एवरी डे. देयर इज फॉक्सटेल. कैंपेन ये होता है कि अगर वो आपको पैसे में कुछ दे रहे हैं, बार्टर और पेड दोनों भी हो सकता है अगर अमाउंट कम हो. ठीक है, तो पेड में यूजुअली क्या होता है, वो आपसे आपका अमाउंट पूछ लेते हैं कि आपको एक रील के लिए आपको कितना अमाउंट चाहिए. ठीक है, तो फिर आप एक नेगोशिएशन पे पहुंचते हो कि ये जो आप, आई थिंक अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो और इनिशियल स्टेज पे हो तो आपको बार्टर ही ज़्यादातर मिलेंगे और आपको कर लेने चाहिए. देयर इज नो शेम इन डूइंग बार्टर. दीज आर, आई थिंक जब आप एक लेवल पे पहुंच जाओ फिर आप कर सकते हो ओनली डू पेड कोलैब्स. और तब भी बार्टर करने में क्या दिक्कत है, द प्रोडक्ट is nice. Like for example for Lavi it's a very beautiful bag
and my mother needed a bag, so I did that campaign for her. There is a campaign from Motorola. For Motorola, I didn't fill any form. Although it was through a marketing agency called Youth Marketer, but I didn't fill any form. वहीं से मुझे मेल आया. ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, अगर आपको एक कुछ भी ऐसे PR चाहिए तो अपने इंस्टाग्राम पे अपना ईमेल ज़रूर लिख दो. They mailed me about this campaign और उन्होंने बोला कि इतने इतने deliverables हैं. It was a paid campaign और उनका वो फर्स्ट बैच था और वो आगे भी एक्सटेंड कर रहे थे. बट मैं OnePlus की एम्बेसडर बन गई, तो what's better than OnePlus. बीच में काफ़ी सारे ब्रांड्स छोड़ रही हूँ जो एज PR आए थे, क्योंकि आई थिंक मैंने PR एक्सप्लेन कर दिया एक एग्जाम्पल लेके, सो दैट्स इनफ. इसको कर सकते हो आप इंस्टाग्राम पेजेस को टेक्स्ट कर दो, ठीक है. देयर इज अ पिच जो बहुत वायरल हो रही है आजकल, बट हम स्टोर्स ऑलमोस्ट सारे रिप्लाई कर देते हैं, कुछ नहीं भी करते. एंड यहाँ पे आपको रिजेक्शंस भी होंगे, बट इट्स ओके. रिजेक्शन सारी जगह होते हैं, डोंट गेट अफ्रेड ऑफ देम. बट यूजुअली ये बार्टर पे करते हैं कि जिनको आप अप्रोच करोगे आई थिंक वो बार्टर पे ही करते हैं, और जिनको आप अप्रोच कर रहे हो ऑब्वियसली यू वांट देयर प्रोडक्ट, यू लाइक देयर प्रोडक्ट, राइट. I'm talking about nano influencers and micro influencers like I am. तो हमारे साथ क्या होता है कि या तो हम वो फॉलोअर रेंज में नहीं आते, ठीक है. तो सिंस हमारे फॉलोअर्स इतने नहीं है अभी, तो हम हमारे साथ वही कोलैबोरेट करेंगे जो खुद ग्रोइंग स्टेज पे है, ठीक है. बड़ी ब्रांड्स भी कर लेती है, बट यूजुअली स्किन केयर नहीं करती है, और यूजुअली अगर वो करती है तो उनका पूरा कैंपेन निकलता है, ठीक है. अब इंस्टाग्राम स्टोर क्या है कि अगर आपने उनको अप्रोच किया तो वो एक बंदे के लिए उन्होंने बार्टर कर दिया, बट जो बड़े बड़े पेजेस होते हैं वो एक बंदे के लिए नहीं करते, ठीक है. उनको चाहिए पूरे 100 और 200 इन्फ्लुएंसर्स और दीज पीपल फ्रॉम कॉलेजेस, यंग पीपल, तो उनको चाहिए वो, और वो बल्क में करते हैं, ठीक है. और उनको इसलिए मैनेज करने के लिए बीच में POC आता है, क्योंकि इतने सारे लोगों को कौन मैनेज करेगा, राइट. उनसे कंटेंट लेना, ब्रांड वोंट गो टू द इन्फ्लुएंसर्स एंड आस्क देम फॉर द कंटेंट. So the POC is supposed to ask them for the content and be that medium of communication between both of the parties. There was one more thing which was a very very big collab in my life. It was Budweiser. I think the people who are watching me from college, they know that I have done these several campaigns now in my college. और यूजुअली मेरे को हर दूसरे दिन आता ही रहता है Budweiser के लिए कॉल. तो आई वॉज दिस कैंपस एम्बेसडर फॉर Budweiser, but this is different from these reels and stuff. Actually there was a form again floated from on the Bombay group, right. I thought we'll have to create the reels and stuff, so I filled it. So after filling that form, what happened was I got a call and they told me that for a day you are paid so and so. It wasn't like that. It was more of like an internship at that time. और आई थिंक वो वही बंदा मैनेज कर सकता है जो कॉलेज नहीं जाता हो, ठीक है. तो मेरे को लगा कि यार, और वो पूरा टाइम का ऑलमोस्ट एक जॉब ही था. इट वॉज अ वेरी टायरिंग जॉब, टू बी ऑनेस्ट. आई वुडंट रिकमेंड दैट जॉब. इट वॉज, I think the workspace was also very toxic, so I wouldn't recommend that job. I'm not allowed. I think मैं ज़्यादा नहीं बोल रही, but it was very toxic. तो और उसमें बहुत मेहनत लगी. I think सबसे ज़्यादा वही मेहनत लगी है. But I owe a lot or to that job. I think मैंने बहुत वहाँ से कुछ सीखा है और कुछ कमाया भी है वहीं से. और मैंने आई थिंक आई परचेज iPhone. आई वॉज सेविंग अप, बिकॉज जब मैं करती थी स्टार्टिंग में कैंपेन्स करती थी, तो ब्रांड यूजली टेल्स यू टू रियली हाई क्वालिटी कंटेंट. ईदर दे वांट थ्रू एन iPhone, either they want through a DSLR. I've had this text from many brands. Or they don't want your content at all, or they don't want you to be a part of their campaign at all. तो मुझे यूजली अपने फ्रेंड्स के पास जाके आई टू प्लीज 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 शूट मी, प्लीज डू दिस. सो ऐसा होता था मेरा. In fact, for Bombay as well, when I was the ambassador, तो मैंने अपनी दोस्त का, she had like an iPhone 11, तो वो मैंने कॉलेज में उसको बुलाया यार प्लीज़. और मुझे याद है मैं लैब के लिए लेट हो रही थी, उसकी भी लैब थी. मैं कहा प्लीज़ 15 मिनट शूट कर दे, प्लीज़ 15 मिनट शूट कर दे. तो वहाँ पे भी बॉम्बे का गेट रेडी विद मी वहीं पे शूट किया था. एक्चुअली में उनका ऑफिस भी बहुत दूर था, और पता नहीं दुनिया की सारी चीज़ें गुड़गांव और नोएडा में ही क्यों होती है. Like Gurgaon and Noida are really far from my place. It's like almost, इंडिया से पाकिस्तान जाना होता है मेरे लिए, तो बहुत दूर होता है. तो मेरे को वहाँ जाना होता था, और वहाँ जाने के बाद अगर आपका काम जल्दी भी खत्म हो जाता है तो द ट्रैवलिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. और ट्रैवलिंग में इतना पैसा भी मेरा खर्च हो रहा था, तो आई वाज़न्ट अर्निंग दैट मच जितना मेरे वहाँ पे लोग कमा रहे थे. बट मैं खुश थी यार, कुछ तो कर ही रही हूँ. और आई एक्चुअली डिड दिस kind of internship, not kind of, it was an internship. This internship when I was having the break, because अगर आप
इंजीनियरिंग कर रहे हो और आपके कॉलेज में अटेंडेंस रूल भी है जहाँ आपको जाना है, तो वहाँ तो आप कॉलेज स्किप कर ही नहीं सकते। पर अगर आप ऐसी जगह हो जैसे ड्यू में, जैसे मुझे काफ़ी लोग, आई डोंट नो एनीथिंग बट द पीपल फ्रॉम ड्यू टोल्ड मी कि वो ना, उनको कुछ पढ़ना नहीं होता, जितनों से मैं मिली हूँ, क्योंकि यूजुअली वो इन्फ्लुएंसर्स ही होते हैं, तो वो कहते हैं उनको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता, उनके कॉलेज में अटेंडेंस की भी बीटी नहीं होती इतनी, तो वो लोग छुट्टी लेके चले जाते हैं अपनी ये इंटर्नशिप करने। ओके, सो इट वर्क्स वेल फॉर देम। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे साथ तो ऐसा नहीं था बिल्कुल भी, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा लाइक अप एंड डाउन था। तो आई डिडंट डू इट व्हेन आई वाज यू नो स्टडिंग इन कॉलेज। तो जब मेरी छुट्टी पड़ी, आई थिंक इट वॉज अ ब्रेक अराउंड 1.5 month का, जो समर के टाइम पे था इंटर्नशिप। आई वॉज ऑल्सो डूइंग माई इंटर्नशिप एट CPCB एट दैट टाइम, और आई वॉज ऑल्सो डूइंग बडवाइजर। इट वॉज सो डिफिकल्ट टू मैनेज एवरीथिंग। आई वॉज हेयर एंड देन द होल टाइम, बट एक्चुअली इट टॉट मी अ लॉट। मेरे को मेट्रो के इतने रूट्स देखने आ गए। पहले मैं गलत मेट्रो में चढ़, मुझे कुछ नहीं पता था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई वेंट आउटसाइड माई हाउस अलोन, आई थिंक यही है। और इतना दूर मैं गई, इतना दूर मैं कभी नहीं गई, और मुझे आई एम सो ग्रेटफुल मम्मी ने अलाउ कर दिया। मेरे पास अमाउंट हो गया कि आई गॉट माई सेल्फ एन iPhone, बिकॉज उस टाइम पे इतना प्रॉब्लमेटिक होता था दूसरों से शूट वगैरह करने के लिए मांगना, तो वो काम मेरा ईजी हो जाए, इसलिए आई इन्वेस्टेड इन इट। और आई थिंक अगर आप एक बिगिनर हो, आई थिंक OnePlus, आई विश OnePlus मेरे पास पहले आता है, would have never invested in an iPhone. OnePlus is really great, amazing camera, ठीक है। तो OnePlus भी आप ले सकते हो, या फिर कोई कम इन्वेस्ट कर लो अगर आपके पास पैसे नहीं है, कोई नहीं। मुझे बस मम्मी पापा से नहीं मांगना था, क्योंकि मुझे लगा ये काइंड ऑफ लग्जरी है, इट इज़ नॉट समथिंग आई नीड। बट हाँ, इस टाइम पे मेरे लिए नीड बन गई थी, इसलिए मैंने भी इन्वेस्ट कर दिया। आई गॉट इट ऑन सेल, आई सेव्ड अप फॉर इट, एंड हियर वी आर मेकिंग वीडियोस थ्रू दैट फोन एंड OnePlus एज वेल। जितने ज़्यादा कनेक्शंस बनाओगे उतने ज़्यादा आपके पास कोलैबोरेशन आ जाएंगे, ठीक है। एप्स विच आर लाइक इन फ्लो, सो from people that it works out for them. So if you want to try, you can try that out too. Don't be desperate enough to get these collaborations. Just keep doing what you're doing on your page, okay? If you're doing great, and if you're posting consistently, and if your content is great, collaborations will follow definitely. ठीक है। आई होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस वीडियो दो। एंड अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है, या यू वांट एनी फॉर्म्स किसी भी उसका, तो आप मुझे DM कर सकते हो। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू सेंड द फॉर्म टू यू। या दैट्स इट, आई थिंक वी आर डन विद दिस वीडियो, एंड आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ मेकअप वीडियो नेक्स्ट, बट आई डोंट नो, आई एम वेरी इनसिक्योर अबाउट माई मेकअप बिकॉज आई एम अ बिगिनर माई सेल्फ। तो मुझे बताना कि if you would be interested in watching a makeup video for the girls, and that's it, and I hope I see you really soon in my next video. Bye.